Good morning students. Today we are going to start another topic of the chapter fractions, and today we will discuss the questions related to exercise 7.3. Now before starting our exercise 7.3, first of all I want to explain you that what are equivalent fractions. Okay, equivalent fractions. Fine. This equivalent word, definitely this word you can relate with the word equal. Okay, equal से आप इस word को relate कर सकते हैं. Means equivalent fractions are a kind of fractions which are almost equal. Now let's see with the help of one diagram. Same size square I am drawing. Okay. Now in this I am shading this portion. So how can I write this? Total is 2 and shaded is 1. This is 1 by 2. Now in this 4 parts I am taking and I am shading 2 parts. 1 part and 2 part. So this is 2 by 4. Okay. Similarly here. Okay, this is total 6 parts and I am shading 3 parts. Okay, so this is 3 by 6. So you can see that 1 by 2, 2 by 4 and 3 by 6. Are these fractions are equal? Definitely you will say no, because numerator is 1, 2 and 3 and denominator is also different, 2, 4 and 6. So these are not equal fractions. इसको मैं equal fractions नहीं बोल सकती हूँ. But when I will simplify it, okay, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Both are coming in the table of 2. Similarly here also 3 1s are 3, 3 2s are 6. Now on simplifying, I got to know that all these 3 are equal to 1 by 2. So such fractions which doesn't seems equal, but on simplification they are equal. These fractions are called equivalent fractions. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैं बता दूंगी अगर आपको हिंदी में मैं समझाऊं तो. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्वल नहीं दिखते हैं, पर सिंप्लीफाई करने पे, मतलब उसको आप जब रिड्यूस कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, सो ऑन सिंप्लीफिकेशन दे आर इक्वल. ओके, सो एंड हाउ वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये हमने कैसे ऑब्टेन किया? डिवाइड करके. लाइक 2 and 4 बोथ आर डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. Here also both are divided by 3. So equivalent fractions are obtained. पहले 2-3 definition हम इसके लिखते हैं. Equivalent fractions doesn't look equal. ये कोई standard definition नहीं है. It is only as per our understanding. Equivalent fraction doesn't look equal, but on simplification they become equal. Okay, this is one thing about equivalent fraction. Another thing, that equivalent fractions are obtained. कैसे मिलते हैं ये हमें? Are obtained by multiplying. या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 2 by 4. तो ये इसके बराबर बन गया. अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना बन जाएगा? 3 by 6. तो मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट मिल सकता है या फिर डिवाइड करके भी. अगर कोई छोटा है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कोई बड़ा है तो वो, मतलब जो सिंप्लीफाई हो पाए उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग both numerator and denominator by same number. Okay, so this is about equivalent fraction and it's very simple सी चीज़ है कि वो इक्वल दिखते नहीं है, लेकिन जब हम उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इक्वल होंगे.
Now after understanding equivalent fraction, let's move to the questions of exercise 7.3. In first question, there are some diagrams, okay, and write the fractions. हमें उन सारे diagrams के लिए क्या लिखना है, उनके fractions लिखने हैं. Are all these fractions equivalent? पहले तो उनका fraction form बनाइए, फिर ये बताना है क्या वो equivalent है या नहीं. A part में पहला जो सर्कल में हाफ है that is 1/2. इन B पार्ट इट इज 2, सॉरी A पार्ट में नेक्स्ट डायग्राम का 2/4, उसके नेक्स्ट डायग्राम का 3/6, उसके नेक्स्ट वाले सर्कल में है 4/8. ओके, सो दीज आर द फ्रैक्शंस. सो आर दीज इक्विवेलेंट? अगर आप इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2. सो व्हाट यू विल से? यस, दे आर इक्विवेलेंट. ये इक्विवेलेंट है. ओके, सिमिलरली इन बी पार्ट में एक रेक्टेंगल के अंदर टोटल पहले वाले में 12 सर्कल्स हैं जिसमें से 4 शेडेड हैं, सो दैट इज 4/12. सेकेंड वाले में 3/9, नेक्स्ट 2/6 एंड देन इट इज 1/3 और लास्ट वाले में कितने शेडेड है हमारे? 6/15. लास्ट वाले में क्या है हमारा? 6/15. ओके, नाउ इन दिस 6/15 लेट्स सी वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट. जितना जितना सिंप्लीफाई हो पाए हम उतना उतना कर लेंगे. 4 and 12 बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 4. सो 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 2s are 6 and 3 5s are 15. These 4 are equal to 1/3. But this is not equal to 1/3, that is 2/5. So because of this we have to write no, they are not equivalent. It's very easy. Now moving to next question number 2. Write the fraction and put up the equivalent fractions from each row. ठीक है, पहले हमें उसके fractions बनाने हैं, फिर equivalent fractions. सो पहला होगा 1/2 A पार्ट, B पार्ट इज 4/6, C पार्ट इज 3/9, इन D पार्ट इट इज 2/10, E पार्ट 3/4, F में कितना है? F में ट्राइंगल्स बने हुए हैं. ओके, so 6 triangles shaded हैं out of 18. okay, then G part 4/8. H में कितना होगा? टोटल वहाँ पे बॉक्सेस हैं हमारे 16 जिसमें से 12 शेडेड हैं. देन I पार्ट, I में हमारे टोटल हैं 12, शेडेड है हमारे 8. देन इन J पार्ट के अंदर हमारे 4 शेडेड हैं आउट ऑफ 16. ओके, नाउ सिंपली आई हैव रिटन ऑल द डायग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. अब जो सिंप्लीफाई हो पाए उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस कांट बी सिंप्लीफाइड. ये हो सकता है 4 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6. ओके, सिमिलरली 3 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं. 3 1s are 3, 3 3s are 9. 2 और 10 दोनों 2 की टेबल में आते हैं. 2 1s are 2, 2 5s are 10. दिस कांट बी सिंप्लीफाइड मोर. 6 और 18 दोनों 3 की टेबल में आते हैं. 3 2s are, सॉरी 6 की टेबल में भी आते हैं. 6 1s are 6, 6 3s are 18, 4 1s are 4, 4 2s are 8. Both are coming in the table of 4. 4 3s are 12, 4 4s are 16. ये भी दोनों 4 की टेबल में आते हैं. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. 4 1s are 4, 4 4s are 16. तो मैंने सबको सिंप्लीफाई कर लिया है. अब आपको समझ में आएगा कौन इक्विवेलेंट है. अच्छा, A में 1/2 है और कहाँ 1/2 है? इसमें.
ओके, सो लेट्स गिव द हेडिंग इक्विवेलेंट पेयर्स। कौन कौन सी इक्विवेलेंट पेयर्स हैं? 1/2 एंड 4/8। सिमिलरली बी में क्या है? 2/3। एक यहाँ 2/3 है, और देख लेते हैं कहाँ है 2/3, यहाँ पे। सो 4/6 एंड 8/12। नेक्स्ट इज दिस इज 1/3। 1/3 एक इसमें है और इसमें है, सो दैट इज 3/9 एंड 6/18। ये सारे मैं इक्विवेलेंट पेयर्स लिख रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? 1/5। 1/5 एक तो इसमें है, और नेक्स्ट इज 3/4। तो 3/4 यहाँ है, तो इसका हो जाएगा 3/4 एंड 12/16। ये हम लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं। This also we have. So these are 1, 2, 3, 4 pairs of equivalent pair. One more is left. Like this is actually this was not 2/10. This is 2/8, which is equal to 1/4, and this is also 1/4. So the last pair is 2/8 and 4/16. In this way, our question number 1 is complete. Like I have written all the fractions. Then we have simplified. Without simplifying, we can't identify that which are equivalent pairs. तो equivalent pairs निकालने के लिए उसको simplify करना बहुत ज़रूरी है. Okay. Now next question we will discuss, that is question number 3rd. In question number 3rd, like in A part, no need to read the question, just look at it. Okay. We have to fill something in this box, and equal sign is there, means these two fractions are almost equal. लेकिन इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 8 है, तो 2 से 8 कैसे बना होगा? 2 multiplied by 4. Okay, so if numerator is multiplied by 4, I have told you that whatever behavior we will do with denominator, same behavior we have to do with numerator also. और न्यूमरेटर का जो बिहेवियर है वही डिनोमिनेटर के साथ होगा. तो ये अगर इंटू 4 हो रहा है तो ये भी क्या होगा? इंटू 4. तो यहाँ कितना आ जाएगा? 28. ओके, सिमिलरली इन बी पार्ट में क्या है? 5/8 इज इक्वल टू 10/। नाउ दिस इज इंटू 2, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? इंटू 2. तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16. सिमिलरली इन सी पार्ट इट इज 3/5 is equal to dash upon 20. This is into 4, तभी into 20 आया होगा, so this should also be into 4. तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12. In D part 45/60 is equal to 15 upon box. ओके, अब यहाँ पे आपको देख रहे हो 45 बड़ा है, 15 छोटा है, मतलब ये छोटा हो गया है. तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? डिवाइड. यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा. 45 को किससे डिवाइड करेंगे? 15 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे. तो इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 20. और आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी देख सकते हो. 15 3 ज़ा 45, तो 3 से किससे मल्टीप्लाई करें? 60 आ जाए, दैट इज 20. ओके, सिमिलरली ई पार्ट का क्वेश्चन क्या है? 18/24 इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 4. इसमें भी देखो, आप चाहो तो डिवाइड वाला फिर देख सकते हो, क्योंकि बड़े से क्या करना है? छोटा करना है. या मल्टीप्लाई भी दे सकते हो. 4 से 24 निकल जाना चाहिए इंटू 6, या फिर ये बोल रहे हैं हम डिवाइडेड बाय 6. दैट विल बी 3. सो इन दिस वे 3 क्वेश्चंस वी हैव डन. नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. 3/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है. A, B, C एंड D पार्ट आर देयर. ठीक है, सब में किसका बनाना है? 3/5 का ही, चारों पार्ट में. ओके, इक्विवेलेंट मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल. ओके, इन A पार्ट डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? 20. अच्छा, अब डिनोमिनेटर 20 होगा तो न्यूमरेटर कितना होगा? इंटू 4. तो यहाँ भी क्या होगा? इंटू 4, दैट इज 12. इन बी पार्ट न्यूमरेटर 9 है,
तो ये कैसे आया होगा इंटू 3, तो ये भी इंटू 3, ये फ्रैक्शन बनता जा रहा है। सी पार्ट डिनोमिनेटर 30, सो 30 कैसे होगा 5 इंटू 6 दैट इज 18। डी पार्ट में अगर आप देखोगे न्यूमरेटर 27 दैट इज इंटू 9, तो यहाँ पे भी क्या होगा इंटू 9, तो कितना आएगा 45। सो इन दिस वे वी कैन मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। ओके, ए पार्ट में भी यही है और बी में भी यही है, इसका हमें इक्विवेलेंट बनाना है। इन ए पार्ट विद न्यूमरेटर 9, अब इसको 9 करें, 9 4 से 36 होगा, ये 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 9, तो इसको भी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे हम, दैट विल बी 12। सिमिलरली इट्स 36। यहाँ पे हमारा क्या करना है डिनोमिनेटर 4, तो ये 4 कब आया होगा 4 इंटू 12 या 48 डिवाइडेड बाय, नाउ 36 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 3। सो इन दिस वे we can make equivalent fraction because equivalent fractions are obtained either by multiplying or by dividing। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।